وہ عروسی لباس میں شازل خان کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر شازل خان نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو وہ آسانی سے پہچان جائے گا کہ وہ کون ہے۔ نکاح کے وقت تو شازل خان نے اس کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تب سے اب تک وہ شازل کے سامنے بھی نہیں آئی تھی، مگر آج اس کا راز کھلنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے دیکھنے کے بعد وہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ اس کا سانس بھی مدھم چل رہا تھا اور اتنی ٹھنڈ میں وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ رات کے 11 بجے اسے اپنے کمرے کے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اس کی سانس اٹک گئی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ شازل خان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ شازل خان جو اپنی شخصیت میں جتنا کمال تھا، جلال میں اتنا ہی تیز تھا۔ جو ہی کمرے کا ہینڈل گھوما وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو نمرا نے گھونگھٹ اوڑھ لیا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی جو ہی شازل خان اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھے گا تو ایک طوفان کھڑا ہوگا۔ اسے ماضی یاد آنے لگا جس کی وجہ سے آج وہ اس قدر خوف میں مبتلا تھی۔ اس وقت وہ لاہور کے گرلز کالج کے باہر کھڑا اپنی بہن کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کل وہ اسے خود ہی کالج سے لینے آ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وین والے انکل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس وجہ سے وہ چھٹیوں پر تھے۔ کالج دور تھا، اس لیے شازل خان اسے خود چھوڑنے اور لینے جا رہا تھا۔ ویسے تو یہ سب اس کی شان کے خلاف تھا، مگر بات اس کی بہن کی تھی اس لیے نرم پڑ گیا تھا۔ کالج کا دروازہ 1 بجے کھلا تو یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں نکلنے لگیں۔ شازل خان گاڑی میں بیٹھا اپنی چھوٹی بہن عنایا خان کو تلاش کرنے لگا۔ یکایک اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی جو ہاتھ میں کتابیں تھامے ہنستے ہوئے اپنے پہلو میں آتی لڑکی سے بات کرتے آ رہی تھی۔ جانے اس لڑکی کی ہنسی میں ایسا کیا تھا کہ وہ پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھنے لگا۔ سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھنے میں وہ اتنا مگن تھا کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ عنایا گاڑی میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھ بھی چکی تھی۔ وہ ہنوز اسی سحر انگیز منظر میں کھویا تھا۔ بھائی میں آ گئی ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ عنایا کی آواز پر وہ چونکا اور جس تسلسل سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے علاوہ جب اس نے دوبارہ اس جگہ پر نظر ڈالی تو مایوسی ہوئی کیونکہ وہ لڑکی اب وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کا دل اب تک اسی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ شازل خان جو کسی لڑکی پر ایک نظر ڈالتا تو دوسری ڈالنا گوارا نہ کرتا، آج اس ہنستی ہوئی لڑکی کو دیکھ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ کمزور نفس یا بری نیت والا مرد ہرگز نہیں تھا، مگر جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس لڑکی سے اس کا کوئی گہرا رشتہ ہے۔ وہ سارے راستے اسی منظر کو اپنی آنکھوں میں سموتا ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ عنایا حیران تھی کہ آج اس کے بھائی کو کیا ہو گیا تھا، وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی کسی پر پہلی نظر میں دل ہار بیٹھا ہے اپنا۔ شازل خان کا دل اس حسینہ کا دوبارہ دیدار کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اگلے دن وہ 15 منٹ پہلے ہی کالج گیٹ کے قریب موجود تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ آج بھی اس لڑکی کا دیدار مل جائے جس نے اس کی نیند حرام کر ڈالی تھی۔ کالج کا گیٹ کھل چکا تھا۔ وہ بڑی محویت سے گیٹ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس وقت کوئی بھی اسے دیکھ لیتا تو یقین نہ کرتا کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ شازل خان اپنے خاندان میں مغرور مشہور تھا۔ اس کی شخصیت میں قدرتی طور پر رعب اور جلال تھا۔ جب وہ بولتا تو مقابل اس کی شخصیت کے سحر میں کھو جاتا۔ کوئی بھی اس کے مقابل بول نہیں پاتا تھا۔ خاندان کی کئی خوبصورت اور امیر کبیر لڑکیاں مرتی تھی اس پر، اس کی نظر کرم کے لیے تڑپتی تھی، مگر وہ لڑکیوں سے دور رہنے والا شخص تھا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی سے کبھی دوستی نہیں کی۔ وہ خود بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود غیر لڑکیوں سے دوستی کرنے سے گریز کرتا تھا، اور نہ ہی وہ اس حق میں تھا۔ آخر اس کی دعا قبول ہو ہی گئی اور اسے وہ دشمن جان سہیلیوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہوئے نکلتی نظر آ گئی۔ آج تو وہ اس کی گاڑی کے قریب سے گزری تھی۔ اس کے قریب آ جانے پر شازل کو لگا اس کے آس پاس کہیں جل ترنگ بج اٹھی ہے، مگر آج وہ لڑکی اس سے جان بھی مانگ لیتی نا تو وہ بخوشی مرنا قبول کرتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ جلدی چلو نا دل نشیں، دیر ہو رہی ہے، اس کی سہیلی نے اسے سست قدموں سے چلتا پا کر جھنجھوڑ کر کہا تو شازل خان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اسے اپنی دشمن جان کا نام معلوم ہو چکا تھا، دل نشیں۔ اس کا نام زیر لب بڑبڑاتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ اس کی بہن عنایا بھی آ چکی تھی۔
अपना नाम दिलनशी सुनकर वो बुरी तरह चिढ़ी थी। कई दफ़ा तुमसे कहा है मुझे दिलनशी मत कहा करो, निम्रा कहा करो। ये इतना अजीब नाम मेरी दादी ने रखा, जो नाम मेरी अम्मी ने दिया है ना उसी से पुकारा करो मुझे। निम्रा ने उसे घूर कर कहा। उसकी सहेलियां अक्सर उसे दिलनशी नाम से पुकार कर चिढ़ाया करती थीं, क्योंकि वो जानती थी निम्रा को अपना ये नाम हरगिज़ पसंद नहीं। जब निम्रा की पैदाइश हुई तो उसकी माँ ने उसका नाम निम्रा रखा था, जबकि दादी ने अपनी मरहूम बहन का नाम उसे दिया था। जब सास बहू दोनों के दरमियान नाम को लेकर मसला गंभीरता पकड़ गया तो निम्रा के बाप ने लड़ाई खत्म करने के लिए अपनी बेटी के दोनों नाम रख दिए। अब वो निम्रा दिलनशी कहलाती थी, मगर जब उसकी दादी का इंतकाल हुआ तो उसे दिलनशी कहने वाला कोई नहीं रहा। घर वाले सब उसे निम्रा कहकर पुकारते थे। अलबत्ता उसके बे फॉर्म पर उसका नाम निम्रा दिलनशी फयाज ही लिखा था। सारे रास्ते वो दिलनशी के बारे में सोचता आया। फैसला कर लिया था उसने कि अगली मुलाकात में वो दिलनशी से बातचीत बढ़ाएगा। वो उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था, बल्कि उसका इरादा था वो उससे बात करके सीधा उससे निकाह कर लेगा। वो उन मर्दों में से शामिल नहीं था जो लड़की को इज्जत बनाने की बजाय उनकी इज्जत से खेलते थे। शाजिल खान बहुत खुश था, मगर वो नहीं जानता था कि उसका सकून कारत होने वाला था। आज निम्रा और उसकी सहेलियों का कॉलेज में आखिरी दिन था। उनके बीए के एग्ज़ाम नज़दीक थे, फिर उनका यूनिवर्सिटी पढ़ने का इरादा था और अब कंबाइंड स्टडी हो रही थी। उन लड़कियों को पढ़ता देख निम्रा की माँ साजिदा दूसरे कमरे में चली आई। उन्होंने अपनी बहन जीनत को फ़ोन मिलाया। जो ही जीनत ने अपनी छोटी बहन का फ़ोन आते देखा तो खुश दिली से रिसीव किया। दोनों आपस में एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने लगी। फिर जीनत ने बातों बातों में बताया कि वो अपने बेटे शाजिल खान के लिए लड़की तलाश कर रही हैं। ये सुनकर साजिदा के लबों पर खामोशी आ गई। अगले ही लम्हे जो जीनत ने कहा वो हैरान रह गई। साजिदा, मैं चाहती हूँ मैं शाजिल की शादी तुम्हारी बेटी निम्रा से करूँ। मेरे मैके में अब सिर्फ तुम मेरी एक बहन रह गई हो और मैं तुमसे अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम सब लोग एक दूसरे के लिए दिल से सारी खलिश और नफरत निकाल दें और एक हो जाए। अपनी बड़ी बहन के मुंह से ये बातें सुन उनकी आंखें नम हुई और उन्होंने शाजिल से निम्रा की शादी की रजामंदी दे दी। जीनत ने कहा कि जब निम्रा की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो मैं बाकायदा तुम्हारे घर रिश्ता लेने आऊँगी। ये सुनकर साजिदा बहुत खुश हुई। वो अपनी बेटी के लिए काफ़ी फिक्रमंद थी, क्योंकि उनके ससुराल में उन्हें कोई लड़का निम्रा के लायक लगता ही ना था। निम्रा की उम्र अब शादी की हो चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि जैसे निम्रा का मास्टर्स मुकम्मल हो वो निम्रा की शादी कर देंगी। दूसरी तरफ शाजिल खान जो घर में दाखिल हुआ वो सुन चुका था। उसकी माँ अपनी बहन से बातें कर रही थी। उसे देखकर वो फ़ोन बंद कर चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी उनके बेटे को अपनी खाला और उनके घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। पहले तो जीनत और साजिदा की कई साल आपस में बातचीत ही नहीं हुई थी, मगर पिछले 1 साल से वो दोनों एक दूसरे के राब्ते में थी। आखिर बहनें थी, कब तक एक दूसरे से जुदा रह सकती थी। मम्मा, आप खाला से बातें करना छोड़ दें। आज आप उनसे बात कर रही हैं, कल उन्हें घर बुला लेंगी। याद रखिएगा, अगर उनके घर से कोई यहाँ आया तो मैं ये घर क्या मुल्क छोड़कर चला जाऊँगा। शाजिल शदीद गुस्से से कहता अपने कमरे में चला गया, जबकि जीनत परेशान होकर रह गई। पिछले 7 सालों से वो लंदन में मुकीम था और वहाँ से कामयाब बिजनेसमैन बनकर लौटा था। 1 साल पहले ही तो वो पाकिस्तान आया था माँ के बुलाने पर, अब फिर उन्हें वापस जाने की धमकी दे रहा था। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। वो तो खाला का नाम सुनकर ही इश्तियाल में आ गया। उसकी बेटी से शादी कैसे करता, यही सोचकर वो मजीद परेशान हुई। माजी में जो हुआ उसे जीनत तो भुला बैठी थी, मगर शाजिल खान नहीं भूल पाया। शाजिल खान का मूड जो थोड़ी देर कबल ख़राब था, अचानक उस लड़की का ख्याल आने पर खुशगवार हुआ। वो जहन में उसका चेहरा लाते मुस्कुरा दिया। अगर कोई उसे मुस्कुराता देख लेता तो उसकी मुस्कुराहट में खोकर रह जाता। किसी ने आज तक शाजिल को खुलकर मुस्कुराते नहीं देखा था। शाजिल खान एक संजीदा लड़का था, मगर आज वो मुस्कुरा भी रहा था तो सिर्फ उस लड़की के लिए जिससे उसकी 2 बार मुलाकात हुई। मगर उसने सोच लिया था कि अगली मुलाकात सरसरी नहीं होगी उसकी, बल्कि वो उस लड़की से बातचीत करेगा। मगर शायद कुदरत को फ़िलहाल ऐसा मंजूर न था। अगले रोज़ भी वो दिलनशी के इंतज़ार में था, मगर वो नहीं आई। उसका दिल धक धक कर रहा था, दिल में दुआएं जारी थी, मगर आज किस्मत में खाली हाथ लौटना लिखा था। इसलिए वो आज उसे नज़र नहीं आई। ना सिर्फ आज, बल्कि उसके इंतज़ार में कई और दिन भी गुजर गए। शाजिल उसकी एक झलक देखने को बेताब था। उसका दिल बेचैन हो रहा था, मगर न जाने क्यों वो उसे नज़र ही नहीं आ रही थी। काफ़ी दिन गुजर चुके थे और दिलनशी का नामो निशान तक ना था। कहीं वैन वाले अंकल की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी और अब वो अनाया को दोबारा ले जाना और छोड़ना शुरू हो चुके थे।
इसके बावजूद अक्सर उसके इंतज़ार में शाज़िल कॉलेज के गेट के करीब खड़ा हो जाता। 1 महीना गुज़र चुका था, वो हिज्र की आग में जल रहा था। या अल्लाह, बस एक बार उससे मिला दे मुझे, अब मैं ये मौका गँवाऊँगा नहीं। वो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता बोला और जल्दी उसकी दुआ कबूल भी हुई। वो उस वक्त मार्केट आई हुई थी, उसकी दोस्त की सालगिरह थी और उसे उसके लिए गिफ्ट्स लेने थे। ज़ीनत ने शाज़िल को किसी ज़रूरी काम से मार्केट भेजा था। वो मार्केट आया तो दूर से ही उसकी निगाह दिलनशी पर पड़ी तो शुश्तर रह गया। उसे यकीन नहीं आया कि वाकई वो उसके सामने मौजूद है या उसका वहम था ये भी। निम्रा के हाथ में काफ़ी शॉपिंग बैग्स थे जो भारी थे। वो फ़ोन कान से लगाती अपनी सहेली से बातें कर रही थी। शाज़िल खान उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगा रहा था। उसे लगा था वो अमीर घराने की लड़की है। ये जानकर उसे तसल्ली हुई, क्योंकि उसके घर वाले मिडिल क्लास घराने में उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। वो खुद भी किसी अमीर घराने में शादी का ख्वाहिशमंद था। उसे अपने हम पल्ला चीज़ें पसंद आती। शुक्र था कि सामने खड़ी लड़की भी हैसियत में उससे कम ना थी। निम्रा अपनी सहेली से फ़ोन पर बातें करने में इतनी मगन थी कि बेध्यानी में सारे शॉपिंग बैग्स उसके हाथ से छूटे और ज़मीं बोस हुए। फ़ोन बंद किया उसने और शॉपिंग बैग्स उठाने लगी। शाज़िल खान, जो उसे देखकर अपनी जगह जम ही गया था, झुककर शॉपिंग बैग्स उठाता देख फौरी उसकी तरफ आया और उसकी मदद करवाने लगा। किसी अजनबी को उसके शॉपिंग बैग्स उठाता देख निम्रा के पैरों तले से ज़मीन निकली। उसके ज़हन में उस अजनबी शख्स के बारे में जो पहला तस्वुर आया, उसकी रूह कांप गई। चोर चोर, वो डरकर बोली और उसके हाथ से झपट कर अपने शॉपिंग बैग लिए। उसे लग रहा था सामने खड़ा लड़का कोई चोर है जो उसके बैग्स उससे छीनना चाहता है, जबकि अपनी पर्सनालिटी पर शाज़िल खान को भी शक होने लगा। क्या वो हुलिये से चोर लगता है? लड़कियां तो एक नज़र उसे देख लें तो निगाह नहीं हटा पाती, और उसकी महबूबा पहली निगाह में उसे चोर कह बैठी। मैं कोई चोर नहीं हूँ, आपकी मदद के लिए आया था मैं, शाज़िल खान उसे वजाहत देते बोला, जबकि निम्रा घूर कर रह गई। अमीर लड़की देखी नहीं और आ गए उसकी मदद करने, खुद को हीरो साबित करने के लिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसे मर्दों को जो अमीर लड़कियों की दौलत देख भागे भागे चले आते हैं और उनके हमदर्द बन जाते हैं। निम्रा उसको बातें सुनाती बोली और वहाँ से चली गई, जबकि शाज़िल खान का फिशारे खून बुलंद हुआ। अगर कोई और लड़की उसे इतनी बातें सुनाती तो शायद जिंदा ज़मीन में गाड़ देता, मगर मुकाबिल जो लड़की खड़ी थी वो उसकी मोहब्बत थी, जिसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। जब निम्रा तेज तेज कदम उठाती दूर चली गई तो शाज़िल खान उससे बात करने उसकी जानिब बढ़ा, मगर वो काफ़ी तेज चल रही थी। वो उसे आवाज़ें देता रह गया। फिर अचानक उसने उसे उसके नाम से पुकारा, दिलनशी सुनो, रुको, मेरी बात सुनो। उस अजनबी लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर निम्रा घबरा गई। उसका ये नाम खास लोगों को ही पता था। उसके कदमों को ब्रेक लग चुका था। दिलनशी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या हम किसी रेस्टोरेंट में बात कर सकते हैं बैठकर? उस लड़के की बात सुन निम्रा का दिमाग घूम गया। वो शाज़िल खान को आम लड़कों की तरह फ्लर्टी समझ रही थी, जो शायद उसकी अमीरी देखकर उससे दोस्ती करने आया था। निम्रा उसे साफ अल्फाज में इनकार करती वहाँ से चली गई। वो ड्राइवर के साथ आई थी। गाड़ी में बैठकर उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कहा। शाज़िल खान किसी सूरत ये मौका नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए अपनी गाड़ी में बैठकर वो उसका पीछा करने लगा। अलबत्ता वो ये तो नहीं देख पाया कि दिलनशी का घर कहाँ है, मगर उसे स्ट्रीट का पता ज़रूर लग गया था जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने सोच लिया था वो दोबारा उससे बात करके अपने दिल की बात उसे बताने में ज़रूर कामयाब होगा। दूसरी तरफ निम्रा हैरान परेशान से उस लड़के के बारे में सोच रही थी जिसे वो पहले चोर समझ रही थी, और वो उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा था। ना सिर्फ ये, बल्कि वो उसका नाम भी जानता था। ज़रूर उसका मकसद कुछ और होगा। वो डर गई थी, क्योंकि बचपन में एक मर्तबा उसे एक आदमी ने अगवा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसके दिल में मर्दों के बारे में खौफ पैदा हो गया। वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी, लड़कों से बात करना तो वो पसंद ही नहीं करती थी, और आज उस अजनबी लड़के के मुंह से अपना नाम और वो बातें सुनकर परेशान हो गई। पहले उसके दिल में ख्याल आया वो उस लड़के के बारे में अपने बाप भाइयों को बताए, मगर फिर उसने इरादा तर्क कर दिया। वो भी उसकी वजह से खामखा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर वाले उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। काफ़ी दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकली, और फिर उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। वो ड्राइवर के साथ ही यूनिवर्सिटी आती जाती। दूसरी तरफ शाज़िल खान उस पर मुकम्मल नज़र रखे हुए था। अब वक्त आ गया था कि वो उससे बात कर लेता, क्योंकि वो उससे मज़ीद दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। वो हर रोज़ उसके हिज्र में जलता था। आज वो उसे यूनिवर्सिटी के पास खड़ा देख फौरी तौर पर उसकी तरफ आया था।
दिलनशीं गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। मैं तुम्हारे घर अपने पेरेंट्स को प्रपोजल के लिए भेजना चाहता हूँ। उस अजनबी को वो दोबारा देख घबरा गई, उसकी बात सुनकर दंग रह गई। जाने क्यों उसे उस शख्स से खौफ आने लगा। वो भागने लगी। अब शाजिल खान को गुस्सा आ चुका था। वो जब भी उससे बात करने की कोशिश करता, वो वहाँ से फरार हो जाती थी और उसकी कोई बात सुनने की रवादार न थी। दूसरी तरफ शाजिल की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो दूसरी मर्तबा कोई बात दोहराने का आदी न था और उस लड़की की वो रोज़ मिन्नतें करने आ जाता। ये बात उसकी अना पर चोट लगा रही थी और वो मज़ीद उस लड़की के हाथों जलील नहीं होना चाहता था। इसलिए अपने दिल की कैफियत उसके सामने रख दी और ये सुनने के बाद निम्रा को उस पर मज़ीद गुस्सा आ रहा था। वो उसकी अधूरी बात सुनकर जा चुकी थी। अब जब वो उसे यूनिवर्सिटी के बाहर नजर आई तो उसने ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़ लिया और उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। निम्रा को खौफ के मारे वही बचपन का मंजर याद आने लगा जब वो बहुत छोटी थी और इस तरह एक मर्द उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा रहा था। उसके होश उड़ गए। अचानक उसका हाथ उठा और शाजिल खान के चेहरे पर निशान छोड़ गया। निम्रा ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये शख्स उसे अगवा कर रहा है। ये सुनकर लोगों का हजूम बढ़ गया। वहीं मौजूद पुलिस वैन भी उसका शोर सुनकर वहां पहुंच गए। उन्होंने शाजिल खान को हिरासत में लिया। वो तड़पता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। निम्रा ने उसके खिलाफ खड़े खड़े पुलिस को बयान दिया कि ये शख्स उसे अव्वल रोज से मशकूक लगता है और पहले भी उसने उसे हरासा करने की कई बार कोशिश की। निम्रा ने झूठ का सहारा लिया ताकि ये शख्स हवालात की हवा खा कर आए और शायद इसके होश ठिकाने आ जाएं इस तरह, और वो उसका पीछा छोड़ दे। निम्रा वहां से जा चुकी थी जबकि शाजिल तड़पता रह गया था। पुलिस उसे गाड़ी समेत पुलिस स्टेशन ले जाने लगी। शाजिल खान के दिल में दिलनशीं के लिए जो मोहब्बत थी अब मर चुकी थी। उसकी जगह अब नफरत ने ले ली थी। उस लड़की ने उसे थप्पड़ मारा, उसे बदनाम करके रख दिया था और जो इल्ज़ाम उस पर लगाया था उसका दिल चाह रहा था कि शर्मिंदगी से मर ही जाए। जब डीएसपी साहब ने उसे देखा और उस पर लगाया गया इल्ज़ाम पुलिस वालों ने बताया तो वो हैरान रह गया। वो शाजिल खान को पहचान चुका था। वो लाहौर के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था, खुद भी बड़ा कामयाब बिजनेसमैन था। मुझे लग रहा है ज़रूर आपको गलत फहमी में लाया गया, वरना आप जैसा मुअज़्ज़िज़ और काबिल शख्स इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता। डीएसपी साहब की बात सुन वो लब भींच कर रह गया। उसने अब फैसला कर लिया था कि उस झूठी लड़की को जब भी उसके सामने आएगी ना, कत्ल कर डालेगा। आज उसकी वजह से उसकी इतनी सबकी हुई थी। उस दिन उस पर लानत भेजी उसने जब वो पहली मर्तबा उसे नजर आई थी। उस दिन उसने उस दिन पर ही लानत भेजी जब वो उसे पहली मर्तबा नजर आए। शाजिल खान जेल जाने से कब छूट गया था, मगर ये खबर दूर दूर तक जा फैली थी और हर कोई उसे हैरान नज़रों से देख रहा था। कौन है वो लड़की जिसने तुम पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया? बताओ मुझे, अभी उसको उसके किए की सख्त सज़ा दूंगा। शाजिल खान का बाप पेचो ताप खाता रह गया। शाजिल खान उस वक्त शदीद गुस्से में था। मैं नहीं जानता उस लड़की को। वो झूठ बोलता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसका जी चाह रहा था हर शय को तहस नहस कर दे। लोगों के सामने जो उसकी इज्जत बनी थी उस लड़की के झूठ बोलने से खराब हो चुकी थी। जब निम्रा को यूनिवर्सिटी आकर ये बात मालूम हुई कि शाजिल खान की काफ़ी बदनामी हुई है, वो खुश भी थी कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अलबत्ता उसने जो थोड़ा झूठ बोल दिया था इसलिए कहा था ताकि पुलिस वाले कोई एक्शन ले। अगर वो इस तरह ना करती तो पुलिस वाले इस बात को मामूली समझकर उसे छोड़ देते। निम्रा उसे ये भी जताना चाहती थी कि वो कोई पागल डरी हुई लड़की नहीं जो उसके आगे दब जाती। शाजिल खान के दिल में उस लड़की के लिए अब सिर्फ नफरत ही नफरत थी। काफ़ी अरसा गुजर चुका था और इस अरसे में जब भी वो उसे याद आती उसका इश्तियाल बढ़ जाता था। उसके घर वाले भी अक्सर उससे पूछते क्या वाकई उसने यूनिवर्सिटी में किसी लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, और कोई उससे पूछता क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। वो लोगों के सवालात सुन सुन कर थक चुका था। उसने कभी इस नीयत से दिलनशीं को नहीं देखा था, मगर जाने क्यों उसने उसे बदनाम कर दिया। काफ़ी वक्त गुजर गया। दूसरी तरफ निम्रा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। अब साजिदा ने जीनत से शादी की बात की। जीनत का कहना था वो इसी साल शाजिल खान की शादी करना चाहती हैं। जीनत ने शाजिल खान से शादी की बात की तो वो बोला, मम्मा जो लड़की आपने मेरे लिए पसंद की है बता दीजिए, मैं कर लूँगा शादी। वो बहुत खुश हुई, कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए साजिदा की बेटी निम्रा पसंद की। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। कहने लगा कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे खला और उनके घर वालों से नफरत है। कई साल पहले ही मैंने उनसे अपने सब रिश्ते ख़त्म कर लिए। मैं उनकी शक्लें देखने का भी रवादार नहीं हूँ। फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं उस लड़की से शादी करूँगा कि जिसने
जिसके बाप ने हमारे साथ वो सब किया, भूल गई आप? वो गुस्से में बोला तो जीनत की आंखें नम हुई। उन्होंने समझाया कि इस सब में मेरी बहन और उसकी बेटी का तो कोई कसूर नहीं। जब वो सब हुआ तब तो निम्रा इस दुनिया में आई भी नहीं थी, इसमें उसका क्या कसूर? मगर शाजिल कुछ सुनने को तैयार ही ना था। जीनत का दिल टूट गया, क्योंकि अपनी बहन से ताल्लुक़ बहाल करने का जो आखिरी दरवाज़ा बचा था वो भी बंद हो रहा था। जीनत गम से बीमार हो चुकी थी, बार बार शाजिल खान को एहसास दिला रही थी कि मैंने बड़े मान से तुमसे कुछ मांगा, मगर वो भी ना तुम दे सके। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर भी मत आना। उनके मुंह से ऐसी बातें सुन वो तड़प उठा था। जीनत की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी और वो भी तकलीफ में आ गया। उसकी माँ की जिद खत्म ना हुई तो उसने फैसला किया, अगर माँ की यही जिद है तो वो अपनी जिद पूरी करेगा। मैं निम्रा से शादी करूँगा। शायद मुझे मौका मिल रहा है उसके ख़ानदान वालों से बदला लेने का। मैं निम्रा से शादी करके उसे भी वही अजियत दूंगा जो मैंने सही थी, मेरी माँ ने सही थी। अब वक्त आ गया हिसाब चुकाने का। वो जनूनी होकर सोच रहा था और फिर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए वो अपनी माँ के कमरे में आया। शाजिल खान अपने दुश्मन को आसानी से माफ़ नहीं करता था। जब उसने जीनत को रजामंदी दी तो वो बहुत खुश हुई। उनकी सेहत भी ठीक होने लगी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, जिसमें शाजिल खान ने कोई हिस्सा नहीं लिया। वो बस अब चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसने निम्रा को देखना तक गवारा ना किया। उसकी माँ और बहन अनाया खुद ही उनके घर जाकर सारे मामला तय कर आए। दूसरी तरफ निम्रा ने जब शाजिल की तस्वीर देखी तो उसके होश उड़ गए। ये तस्वीर उसकी माँ ने उसे दिखाई थी। उसे याद आया, ये तो वही शख्स था जो उसका पीछा करता रहा था और काफ़ी अरसा पहले जिसे उसने थप्पड़ मारकर पुलिस के सामने जलील किया था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। समझ नहीं आया कि क्या करे। क्या शाजिल खान जानता है उसे, इसलिए वो उसके पीछे आता था? उसने अपनी खाला और उनके बच्चों के नाम तो सुन रखे थे, मगर उन्हें देखा नहीं था। कांपने लगी थी वो, मगर अब वक्त कहाँ बचा था। निकाह की तारीख मुकर्रर की जा चुकी थी। वो किस तरह इनकार करती? उसने अनाया और उसकी माँ से शाजिल खान के किस्से सुने। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो कितनी रूपदार शख्सियत का मालिक था। वो खुदा से दुआ करने लगी ये रिश्ता टूट जाए और वो शाजिल के सामने ना आए और ना शाजिल का उससे सामना। उसको आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था शिद्दत से। निकाह के दिन उसने डर के मारे घूंघट निकाल लिया। शाजिल खान वैसे भी अलग कमरे में मौजूद था। उसने अपनी बीवी निम्रा को एक निगाह देखना तक भी गवारा नहीं किया, क्योंकि वो उससे सिर्फ अपनी माँ की वजह से शादी कर रहा था। उनकी रुखसती एक माह बाद थी। साजिदा की ख्वाहिश थी रुखसती सादगी से की जाए, जिसका जीनत ने भी एहतराम किया। शाजिल खान खुश नहीं था, इसलिए उसने किसी तकरीब में हिस्सा भी नहीं लिया। वो गुस्से का बहुत तेज़ था, इसलिए किसी ने उसे फोर्स भी नहीं किया। ज़्यादा इवेंट्स पर तो निम्रा ने घूंघट ही निकाल रखा था। रुखसती के बाद निम्रा को शाजिल के कमरे में पहुंचा दिया गया। शाजिल का अब भी निम्रा को देखने और उससे बात करने का कोई इरादा न था, क्योंकि वो सिर्फ उसके घर वालों को उसके ज़रिए तड़पाना चाहता था कि उनकी बेटी शाजिल खान की निकाहों में कोई अहमियत नहीं रखती। मगर आज रुखसती के बाद उसकी माँ ने उसे ज़बरदस्ती कमरे में भेज दिया। निम्रा एकदम होश की दुनिया में आई, क्योंकि शाजिल कमरे में आकर उसके करीब बैठ चुका था। उसने तल्ख आवाज़ में घूंघट उठाने को कहा उसे, तो वो सहम कर रह गई। उसे यकीन हो चुका था कि उसका अंजाम बहुत करीब है। जूँ ही उसने घूंघट उठाया तो शाजिल खान को 440 वोल्ट का झटका लगा। दिलनशी, वो तड़प कर बोला। उसे वो सारा कुर्ब याद आने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने जो लड़की दुल्हन बनी बैठी है वो दिलनशी है। तो फिर वो निम्रा जिससे उसकी शादी हुई वो कौन है? वो दंग रह गया था, गुस्से से पागल होने को था। उसने उसे झिंझोड़ा कि कौन हो तुम और धोखा करने की हिम्मत कैसे? जवाब दो, वरना यहीं के यहीं गला घोंट डालूंगा। उसके नज़दीक आ उसकी आंखों में आंखें डालकर वो बोला तो वो सहम कर रह गए और उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि मैं ही निम्रा दिलनशी हूँ। मैं नहीं जानती थी आप मेरे कज़न हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी बदतमीज़ी ना करती आपसे, और ना ही वो सब होता। मैं आपको गलत समझ रही थी। निम्रा की बातें सुन उसका दिमाग घूम गया। उसको लग रहा था कि उसके दिमाग की रगें फट जाएंगी आज। जिस लड़की से उसे नफ़रत और मोहब्बत एक साथ थी वो एक ही लड़की थी। वो गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारता कमरे से बाहर निकल गया। निम्रा डर के मारे रोना शुरू हो चुकी थी। दूसरे कमरे में आकर उसने सारी रात सिगरेट फूंके थे। अब उसकी आंखों में एक जुनून था, एक इंतकाम था। वो खुश था कि जिस लड़की से उसे नफ़रत और मोहब्बत हुई थी वो एक ही थी। अब वो उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अज़ियत देगा। अगले दिन उनका वलीमा होगा।
अगले दिन उनका वलीमा हो गया। निम्रा उससे डर रही थी। उसे लगा आज भी शाजिल खान गुस्से में कमरे में नहीं आएगा। निम्रा का दिल चाहा उससे माफ़ी मांग ले, मगर डर रही थी। रात को शाजिल कमरे में आया तो उसकी जान ही निकल गई। उस वक्त दुपट्टे से भी बेनियाज थी। उसे देखता शाजिल उसके करीब आया और अचानक अपनी गिरफ्त में लिया। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि निम्रा को लग रहा था कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। शाजिल प्लीज़, निम्रा सिसकी। इससे पहले कि शाजिल खान निम्रा पर अपना जुनून उतारता, निम्रा खौफ से उसकी बाहों में लुढ़क गई बेहोश होकर। शाजिल जो कि गुस्से में था अचानक चौंक गया। तुम इस तरह मेरी नफ़रत से बच नहीं सकती निम्रा। सॉरी दिलनशी। निम्रा के मासूम चेहरे को देखते वो गुस्से से उसे बिस्तर पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। निम्रा उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थी जिसे बेदर्दी से तोड़ना चाहता था वो। कुछ देर बाद वो कमरे में वापस आया तो उसके हाथों में मुंह दिखाई का तोहफा था जो उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसे पकड़ा दिया था ताकि वो अपनी बीवी को दे। वो निम्रा की कलाई में सख्ती से पहनाने लगा तो वो थोड़ा सा कसमसाई और उठ बैठी। उस वक्त उसकी कलाई शाजिल के हाथों में थी। उसने इतनी मजबूती से उसकी कलाई पकड़ी थी कि निम्रा को लगा उसका हाथ टूट जाएगा। आज रात तुमसे मैं हर चीज़ का बदला लूँगा। मुझसे मोहब्बत की तवक्को मत रखना, क्योंकि जो शाजिल खान तुमसे मोहब्बत करता था ना, मर चुका है वो। और ये वाला शाजिल खान तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है। वो उसे वार्निंग देता हुआ बोला तो वो रोने लगी। उसने उसके आगे हाथ जोड़े कि वो एक मर्तबा उसकी बात सुन ले, मगर वो शाजिल खान ही क्या जो किसी को अहमियत दे। उसने निम्रा को अपने हिसार में लिया और उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। निम्रा की आंखें नम थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। अपना मतलब पूरा करके वो जा चुका था। निम्रा सी सकती रह गई। शाजिल का गुस्सा किसी सूरत उतरने में नहीं आ रहा था। वो हर वक्त निम्रा से बदला लेने के मंसूबे बनाता रहता, मगर जब उसका चेहरा सामने आता तो दिल बगावत कर जाता कि उसे माफ़ कर दिया जाए। मगर वो उसे कैसे माफ़ कर सकता था। उसने अपना दिल पत्थर का बना लिया। एक रात जब वो निम्रा को अपने पास बुला रहा था तो निम्रा ने उससे इल्तजा की कि वो एक बार उसकी बात सुन ले। अपनी सफाई में वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर शाजिल कुछ नहीं सुन रहा था। उस पर सिर्फ एक ही जुनून सवार था, और वो जुनून था उससे बदला लेना। घर वाले उसका निम्रा से बेपरवाह सलूक देख रहे थे, जबकि निम्रा का बुझा बुझा चेहरा उसकी माँ से भी पोशीदा नहीं था। वो जब निम्रा से पूछती कि वो शाजिल के साथ खुश है तो ना चाहते हुए भी वो इजाब में सर हिला देती। शाजिल खान ने अपने सारे कामों की जिम्मेदारी निम्रा पर डाल रखी थी। घर में मुलाजिम होने के बावजूद उसे ही सब काम करने पड़ते, और अगर उससे कोई काम गलत हो जाता तो वो सबके सामने उसे बातें सुनाता था। ये बात अब ख़ानदान में भी फैल गई थी कि शाजिल खान अपनी बीवी से अच्छा सलूक नहीं करता। कुछ लड़कियां तो खुश भी हो गई थी कि शायद वो अपनी बीवी को तलाक दे तो वो अपना रास्ता हमवार करे और उनकी शादी शाजिल सुल्तान खान से हो जाए। जीनत को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था, और वो कुछ कुछ समझ रही थी। निम्रा को अपनी ज़ात से नफरत होने लगी कि वो अपने शोहर के लिए सिर्फ इस्तेमाल होने का एक खिलौना थी। इसके अलावा उसके शोहर के दिल में उसके लिए ज़रा भी अहमियत ना थी। उसे दुख होने लगा। उसके माँ बाप और भाई अलग परेशान थे। वो शाजिल से कितनी बार कह चुके थे कि अगर हमारी बेटी पसंद नहीं तो तलाक देकर फारिग करो उसे, लेकिन उसके साथ ऐसा सलूक मत करो। निम्रा अब खामोश नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने सबको बता दिया कि उसका शोहर उसके साथ क्या सलूक करता है। निम्रा के घर वालों को तड़पता देख शाजिल खान को अब सुकून मिल गया था। जब निम्रा को ये खुशखबरी मिली कि वो उम्मीद से, तो उसका दिल खुश हो गया। उसने बड़े मान से शाजिल खान को ये खबर सुना दी कि शायद वो ये खबर सुनकर अपना ताल्लुक बेहतर कर ले उससे और उसके रिश्ते में खुशियाँ लौट आएं। मगर शाजिल ने किसी खुशी का इजहार नहीं किया और कहने लगा कि मेरा तुमसे कोई मोहब्बतों का रिश्ता नहीं है कि मुझे इस बच्चे का सुनकर खुशी हो। ना तो मुझे तुम पसंद हो और ना ही इस बच्चे के आने की खुशी। शाजिल खान जानबूझकर बोला। उसके तकलीफ दे अल्फाज सुन निम्रा टूट कर रह गई। आज उसे अपनी अहमियत 2 टके की लगी। उसने सोच लिया था कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए शाजिल की ज़िंदगी से ही चली जाएगी। उसने बहुत कोशिश की थी वो शाजिल के दिल में अपनी जगह बना ले और अपनी गलती की माफ़ी मांग ले, मगर उसका दिल नर्म नहीं हुआ। उसने एक ख़त लिखा जिसमें उसने शाजिल खान से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि उसके साथ बचपन में एक सानेहा हो चुका था।
कोई उसे अगवा करने वाला था मगर बर वक्त उसे बचा लिया गया। तब से वो मर्दों से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी और वो शाज़िल खान को भी वैसा ही मर्द समझ बैठी। इसलिए उसने उस दिन भी उसे गलत समझ लिया और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया ताकि वो आइंदा उसके रास्ते में ना आए। उसने सब कुछ लिखने के बाद कागज़ ड्रेसिंग टेबल पर रखा और ये भी लिखा कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी और हमेशा हमेशा के लिए अपने मैके जा रही है। दूसरी तरफ शाज़िल खान का दिल पिघल रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वो दिलनशीं को माफ़ कर दे। उसे जब से पता चला था कि दिलनशीं प्रेग्नेंट है वो बहुत खुश था। उसका जी चाहा वो दिलनशीं को गले लगा ली मगर उसे माजी की सारी अज़ियतें याद आने लगी जिसकी वजह से उसके कदम रुक गए। उसने जानबूझकर उसे अज़ियत देने के लिए वो सब बोला था। हालांकि वो जानता था कि उसे कितनी खुशी हुई थी कि दिलनशीं उम्मीद से उसके दिल में आया। वो उसकी दिलनशीं ही तो थी जिस पर वो मरता था मगर उसने उसकी इज्जत ख़राब करके अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ वो भी निमरा थी यानी उसकी खाला की बेटी। वो खाला की फैमिली से नफ़रत करता था। दूसरी तरफ वो निमरा भी थी यानी उसकी खाला की बेटी और खाला की फैमिली से वो नफ़रत करता था। उसे याद था कि कई साल पहले जब वो महज 7 साल का था उसकी 2 साल की बहन थी तब इन लोगों के माली हालात कितने ख़राब थे। उनका घर बिक गया था। उसका बाप पैसे कमाने और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल अच्छा बनाने के लिए लंदन चला गया। अम्मी के मैके में सिर्फ उनकी बहन थी साजिदा। वो लोग अमीर थे इसलिए उसके बाप ने ज़ीनत और अपने 2 बच्चों को उनके घर भेज दिया और खुद लंदन चले गए। साजिदा का शौहर बहुत मगरूर और संगदिल इंसान था। वो गरीबों को देखना तक गवारा ना करता। उसने शाज़िल खान और उसकी बहन और माँ को बहुत ज़लील किया। बात बात पर उन्हें उनकी गुर्बत के ताने देता था। साजिदा अपने शौहर के आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलती थी क्योंकि वो खुद उनसे बहुत डरती थी। बाप को देखकर शाज़िल के हम उम्र कज़न भी शाज़िल और उसकी माँ बहन का मजाक उड़ाते। एक दिन जब अनाया ने बेध्यानी में खेलते खालू का कीमती गुलदान तोड़ दिया तो उन्होंने उसे बहुत पीटा था। ज़ैनत खामोश थी क्योंकि वो मजबूर थी। काफ़ी अरसा वो लोग खाला के घर रहे। जब उन्होंने खाला का घर छोड़ा तब निमरा पैदा हुई। बचपन के सारे जुल्म वो भूला नहीं था। उसके खालू से ज़रा ज़रा सी गलती पर पीट दिया करते। वो डरता था। उसकी शख्सियत में डर खौफ पैदा हो गया था। उसकी शख्सियत में डर और खौफ पैदा हो चुका था। 6 साल वो खाला के घर रहा था और इस दौरान उन्होंने बहुत ज़हनी अज़ियत सही। जब शाज़िल खान के बाप ने उसे लंदन बुलाया तो वहाँ जाकर उसकी शख्सियत बदल गई। उसके बाप ने बहुत मेहनत की और एक कामयाब बिजनेसमैन बने। उन लोगों ने लाहौर में अपना शानदार घर बनाया। अलबत्ता ज़ीनत और साजिदा के दरमियान दूरियां पैदा हो गई। साजिदा का शौहर शाज़िल के ख़ानदान से नफ़रत करता था और यहाँ शाज़िल उनसे उनके सलूक का बदला लेना चाहता था। काफ़ी अरसा गुजर गया। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हुए मगर ज़ीनत को अपनी छोटी बहन की याद सताने लगी तो उन्होंने दिल बड़ा किया और साजिदा से बात कर ली। वैसे भी इसमें साजिदा का कोई कसूर नहीं था। शाज़िल खान एकदम माजी से निकला। आज भी उसके हाथ पर एक निशान था जो उस वक्त आया था जब निमरा के बाप ने बचपन में उसे मारा था। आज उसे फिर बचपन की वो सारी अज़ियतें याद आ गई। वो अपने कमरे में आया तो निमरा को मौजूद ना पाकर उसकी निगाह कागज़ पर गई जो वो ड्रेसिंग टेबल पर छोड़ गई जो वो वहाँ छोड़ गई थी। वो हैरान हुआ और उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। आज उसके सामने ये हकीकत भी आ गई कि क्यों दिलनशी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया। ख़त पढ़ते ही उसका दिल अजीब होने लगा। वो इतनी आसानी से किसी को माफ़ नहीं करता था। अलबत्ता उसकी माँ उसे समझा रही थी कि वो मैके जाकर निमरा को वापस ले आए मगर वो नहीं माना। आजकल ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था इसलिए वो वहीं मसरूफ़ था। उसका ध्यान निमरा की तरफ गया ही नहीं। जबकि निमरा अज़ियत में बैठी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका शौहर उसे मनाने आ जाएगा और हकीकत जानने के बाद उसे माफ़ कर दे मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे अज़ियत में देख निमरा का बाप भी तकलीफ़ में आ चुका था। अब उसके अंदर पहले जैसी अकड़ नहीं रही थी। ज़िंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। वो अपनी बेटी को गम में देख तड़प रहा था। उसने फैसला किया कि वो खुद शाज़िल खान से बात करेगा। जब शाज़िल ऑफिस से आया तो घर में कैसू में उसके खालू बैठे थे। उन्हें देखकर वो उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। उसके पैरों को हाथ लगाने लगे। शाज़िल खान दंग रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था वो इतने बदल गए। उन्होंने ज़ीनत और अनाया से भी माफ़ी मांगी। ज़ीनत ने उन्हें माफ़ कर दिया। वो सोच रही थी कि जवानी में हर कोई शेर बना फिरता है। जब बुढ़ापा तारी होता है तो उसकी सारी अकड़ निकल जाती है।
ऐसा ही मामला खालू के साथ हुआ, इसलिए वो बदल गए थे। शाजिल खान चुपचाप कमरे में आ गया। अब उसका दिल भी उसे कह रहा था वो नर्म पड़ जाए और दिलनशीं को माफ़ कर दे। एक वक्त था जब वो उसके लिए जान देने को तैयार था और आज वो खुद उसकी जान अपने हाथों से ले रहा था। काफ़ी दिन गुजर गए और उसे उसकी कमी का एहसास होने लगा। जीनत ने उसे समझाया कि क्यों वो एक बेगुनाह को सज़ा दे रहा था। निम्रा का तो कोई कसूर नहीं था, वो तो पैदा ही तब हुई थी जब वो इस घर से ही जा चुके थे। बोलो शाजिल, अल्लाह को क्या जवाब दोगे तुम? एक बेगुनाह लड़की को तुमने जलील किया और उसे ऐसी हालत में तन्हा छोड़ दिया जब उसे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। जीनत के समझाने पर वो कुछ शर्मिंदा हुआ था। अपनी गलती का एहसास होने लगा उसे। अब उसने इरादा कर लिया था कि वो जाकर निम्रा को घर वापस ले आएगा। उसने फ़ौरन गाड़ी निकाली और निम्रा के घर जा पहुंचा। निम्रा जो उसके आने से मायूस हो चुकी थी, यकलख परेशान और हैरान दोनों थी। शाजिल ने सबके सामने निम्रा से मोहब्बत का इजहार किया और उससे माफ़ी भी मांगी और उसे अपने साथ घर आने का कहा। निम्रा हैरान थी कि उसका संगदिल शोहर इतना मेहरबान भी हो सकता है। मुझे तलाक चाहिए, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। निम्रा की बात सुनकर वो तड़प उठा था। अब जब शाजिल उसे पूरे दिल से अपनाना चाहता था तो वो उसे छोड़कर जाना चाहती थी। शाजिल ने अपनी अना को भुला दिया और अपने नर्म हिसार में उसे लिया और अपना माजी उसे सुना डाला। माजी ने उसे इतना संगदिल बना डाला था कि वो शदीद इंतकाम लेने पर उतर आया। निम्रा शॉक्ड थी क्योंकि उसे लग रहा था वो इसलिए उसे सज़ा दे रहा है क्योंकि उसने उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवाया था। अब्बू ने आपके साथ ऐसा क्यों किया होगा? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मुझे लग रहा था आप मुझे ये सज़ा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाकर आपको पुलिस के हवाले किया था। दिलनशी की बात सुनकर वो गहरी सांस खारिज करके रह गया। हाँ, इस बात का भी गुस्सा था, मगर अब सब ठीक हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ अब हम मोहब्बत से इस रिश्ते का दोबारा से आगाज़ करें। क्या तुम्हें मंजूर है? उसने मोहब्बत से पूछा तो वो उसके सीने पर सर रख गई। आज शाजिल खान बड़ी नरमी से उसके करीब आया, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। निम्रा जो अपने शोहर की मोहब्बत को तरसती अब उसकी मोहब्बत और तवज्जो को पाकर खुश हो गई थी। अब शाजिल उसे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देता था। निम्रा का इरादा था वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, मगर जब उसे अंदाज़ा हुआ कि उसके बाप की बेरहम सलूक ने उसे संगदिल बनाया था तो उसे शर्मिंदगी होने लगी। उसने शाजिल को माफ़ कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि इंसान का बुरा या अच्छा रवैया ही बच्चों को रहम दिल या संगदिल बनाता है। उसने सोच लिया था जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आएगी ताकि वो इंतकाम की आग में ना जले बल्कि एक रहमदिल इंसान बने।